Good afternoon to all the children and dear parents. It's been fantastic to see you back again on this platform to talk about how we can make life of the children successful and better. Okay, so we have been talking for last few months, rather a year, how we can bring difference to the lives of the children. I'm sure all children, all parents, all teachers are enjoying this, and I could see the difference on the faces of my teachers also. शर्मा मैम आज बिल्कुल एनर्जी से फुल नजर आ रही हैं. हाँ, बच्चे फुल नजर आ रहे हैं, टीचर्स में एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, पेरेंट्स और बच्चों की एनर्जी भी देखते बन रही है. आई एम सो हैप्पी कि आप सब लोगों ने इस चीज को वैल्यू दिया है और इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये we together are in the process of making history, process of making our children better. We are in the process of ensuring the highest possible situations of creating conditions for successful children through school, through parents, through house and the community. So today, I wanted to discuss a few things with you while thanking the parents for so much of cooperation the school has received, I have received, and our teachers are getting it. And somehow we have been able to develop a bonding of relationship between all parents, all children, all teachers, and entire school, including me. We are so happy so that, we are so happy to see the change in the children. So, in this process, I am sure together we are going to make a huge difference in the life of all the children, all the parents, community, and country as a whole. So, if together we are able to ensure an environment of positivity, an environment of creativity, imagination, and performance. So I am very sure that these children today have tremendous potential in themselves. It is for us, the teachers, the parents, the school, the principal, everyone, to find out that innate potential our children has. And we will have to work out the common strategies through which we can provide some interventions and make sure that our children do well in their lives. इस प्रोसेस में ऑलरेडी हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं और इसके रिजल्ट्स भी हम सबको दिखाई देने लगे हैं. मुझे बहुत फख्र है इस बात को कहने में कि आज जब मैं स्कूल में जाता हूं, बच्चों को देखता हूं, तो मुझे बिल्कुल कंसर्न्ड, केयरफुल, डिसिप्लिन्ड और टू द पॉइंट बच्चे दिखाई दे रहे हैं स्कूल के अंदर. जब एयरपोर्ट्स पे मैं जाता हूं या दूसरी जगहों पे देखता हूं तो मैं बहुत केयरलेसनेस देख रहा हूं, इवन पढ़े लिखे लोगों में भी. मगर जब मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों को देखता हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि बच्चों में बहुत ज्यादा केयरफुलनेस है. थैंक्स टू द पेरेंट्स एंड द टीचर्स फॉर हैविंग प्रिपेयर्ड दीज चिल्ड्रन सो वेल. कि कोई भी चैलेंज इस बात को लेके नहीं है कि हमारे बच्चे कहीं भी कोई चांस अपनी हेल्थ के लिए या अपनी लाइफ के लिए ले रहे हों. Whenever I am visiting the buses, the bus area, the walk area, the classroom area, sports area, the children are seen with proper protocols to avoid any sort of risk to their health. And this is something fantastic, and I wish that all of us must clap once for our children for doing such a wonderful job, that the children needed not to be controlled. And this is what the situation we wanted to create. That self-management is better than the control by somebody else. So we control the animal herds. We need not to control the human beings. Human beings are equipped enough to control themselves, manage themselves, and take care of themselves. Okay? जैसा कि पिछले 1.5-2 साल में हमारे बच्चों ने काफी कुछ लूज किया है. हमारे बच्चे काफी हद तक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में रहे हैं. जिन बच्चों को खुले में आसमान देखने की आदत थी,
उन्होंने खिड़की से आसमान देखा है इस पीरियड में। तो खिड़की से जब आसमान देखते हैं तो हम बड़ा लिमिटेड व्यू देख पाते हैं। अभी फिर से एक एनवायरनमेंट है जहां हमारे बच्चे आसमान को खुले में देख सकें, और उसकी परिस्थिति भी हमारे बच्चों ने क्रिएट की है डिसिप्लिन में रह के, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके, कि आज भी मुझे बिल्कुल 1% भी ये चिंता नहीं है कि मेरे किसी बच्चे को मुझे किसी तरह से डिसिप्लिन में लाने की आवश्यकता हो। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड एंड फील प्राउड कि मैं आप जैसे बच्चों के साथ, आप जैसे पेरेंट्स के साथ काम कर रहा हूं। मैं इसको अपना ड्यूटी नहीं मानता, मैं इसको अपनी नौकरी नहीं मानता। ये मैं और ये सारे टीचर्स, सब लोग हम इसको अपना पैशन मानते हैं, और मैं समझता हूं पेरेंट्स की तरफ से भी वही पैशनेट केयर हमको देखने को मिल रही है। तो सभी बच्चे पेरेंट्स के साथ, हमारे साथ जैसा वेल कनेक्टेड हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, उसका फायदा इन बच्चों को निश्चित रूप से होने जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले काफी समय बच्चों को घर में कैद रहना पड़ा है, उस वजह से थोड़ा सा जो कम्युनिकेटिव स्किल्स थे बच्चों के, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफर किए हैं। रीजन बीइंग मौका नहीं था। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एडमिशन स्कूल में लिया मगर स्कूल में आने का मौका नहीं मिला। ऑनलाइन क्लासेस में ही जो भी इंटरेक्शन पॉसिबल हुआ वो कर पाए। अब हम एक ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जहां बच्चों का जो कम्युनिकेटिव स्किल है, जो इंटरेक्शन पार्ट है, जो पर्सनालिटी पार्ट है, जो एटिकेट्स हैं, उन सब पे हम लोग को अगले 15 दिन एक खेल खेल के माहौल में काम करना है। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी का पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट और कनेक्ट दिल से इस प्रोजेक्ट को मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, आपको एक छोटा सा प्रोटोकॉल भेज रहे हैं जो कल आपके मोबाइल्स में ड्रॉप हो जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। उसमें हम बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, बच्चों के एटिकेट्स पे काम करेंगे, बच्चों के बिहेवियर पे काम करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि हमारा एक बच्चा यदि 100 कॉमन बच्चों के बीच में खड़ा कर दिया जाए और किसी अननोन आदमी से कहा जाए कि इस स्कूल के का एक बच्चा है इसमें, वो ढूंढ के दिखाइए हमको, वो एक कॉमन मैन जो बच्चों को जानता भी नहीं है, उस बच्चे को ढूंढ के ला दे, तब हमारी सफलता है। और वो तब संभव है जब हम 360 डिग्री पे सब लोग मिलकर इस पे काम करेंगे। तो अभी टीचर्स कल से इन क्लासेस में 3 मिनट्स पर पीरियड, मीन्स 8 पीरियड्स पर डे, 3 मिनट्स पर पीरियड मीन्स 24 मिनट्स पर डे, बच्चों के ऊपर पर्सनालिटी ग्रोथ, एटिकेट्स, बिहेवियर, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन जैसे एरियाज पे काम करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट होगा जिसको हम एकेडमिक प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर आ रहे हैं। 15 डेज के अंदर एक भी बच्चा मैं ऐसा नहीं देखना चाहता जिसके कम्युनिकेशन में कहीं कोई वीकनेस हो। ये मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशन है सभी टीचर से, सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से। और मुझे मालूम है जब जब मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने साथियों से रखी है, अपने पेरेंट्स से रखी है, अपने टीचर्स और अपने प्यारे बच्चों से रखी हैं, वो हमेशा पूरी हुई है। और मैं अभी भी बहुत आशा करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को आप बहुत सफल बनाएंगे। मेरा एक प्रण है कि जब ये बच्चे पास आउट होके बाहर जाएं, तब भी एक ऐसी छाप छोड़ें कम्युनिटी के ऊपर कि यस, एजुकेशन हो तो ऐसी, स्कूल हो तो ऐसा, और सबसे बड़ी बात बच्चा हो तो ऐसा। यूनिवर्सिटीज को मैं ये फोर्स करना चाहता हूं कि वो यहां आएं और कहें कि हमें आपके स्कूल के इस तरह के बच्चे चाहिए। वो चीज हम अचीव करना चाहते हैं और वो पॉसिबल है।
सब लोग साथ में मिलके काम करके इसको निश्चित रूप से हम पॉसिबल बना पाएंगे। तो क्या करना है, वो जो 3 मिनट का टाइम टीचर और बच्चे आपस में सेल्फ ग्रोथ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसी 3 मिनट के टाइम को घर पे जब बच्चा पहुंचेगा तो कम से कम 5, 7, 10 मिनट पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन में उसको यूज करेगा। मीन्स हम सब लोग जो हिंदी मीडियम या कहिए कि नॉर्थ इंडिया जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स में से आए हुए लोग हैं, उन सब लोगों के लिए इंग्लिश एक टास्क होता है। इन बच्चों में वो प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चे शुरू से ही बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, बट क्योंकि 2 साल इन्होंने सफर किया है उसको हम मेकअप करना चाहते हैं। उस वजह से जब ये घर पे पहुंचेंगे सभी पेरेंट्स इन बच्चों के साथ मिलकर इनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करेंगे। और काम कैसे करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। एजुकेशन में सबसे ज्यादा मीनिंग रखने वाली चीज एक ही है, वो है रिपीटिशन, रिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। आपने क्या किया, बच्चे ने जो क्लास में सीखा, जो स्कूल में सीखा, आपने सिर्फ बच्चे को शाम को एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि बेटा तू जो सीख के आया है या बेटी तू जो सीख के आई है वो मुझे भी सिखा दे। 5 मिनट, केवल 5 मिनट चाहिए आपके। बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आने लगेगा। बच्चा आपको बहुत प्यार करता है, हर बच्चा हर पेरेंट को बहुत ज्यादा प्यार करता है। ऐसी सिचुएशन में यदि उसको पेरेंट्स का एप्रिसिएशन मिल जाए, पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए, पेरेंट्स का कनेक्ट मिल जाए, पेरेंट्स का गाइडेंस मिल जाए, तो ये बच्चे बहुत कुछ कर जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, सभी लोग मिलकर इन बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ऐसी ऐड करेंगे जो बच्चों की लाइफ में ही नहीं, समाज की लाइफ में भी, देश के लिए भी ये असेट बन सकें। जैसे हम लोग कॉमर्स में बात करते हैं कि हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक तरफ असेट्स होते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज होती हैं। जिनके पास लाइबिलिटीज कम है, असेट्स ज्यादा हैं, वो रिच लोग हैं। जिनके पास लाइबिलिटीज ज्यादा है, असेट्स कम है, वो पुअर लोग हैं। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो हमें असेट्स क्रिएट करने हैं, और हमारे बच्चे से बड़ा असेट कोई वर्ल्ड में दूसरा हो नहीं सकता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग असेट है। अपने लिए ही नहीं, अपने घर के लिए ही नहीं, अपने समाज के लिए ही नहीं, अपने देश के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। आज जैसा हम देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छोटे छोटे स्कूल्स में से पढ़ के निकले हैं। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा पराग अग्रवाल का केस, जो ट्विटर के सीईओ बने हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई गूगल का सीईओ है जैसे सुंदर पिचाई है, सत्या नडेला है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही छोटे छोटे स्कूल्स में से निकल के इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचे हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने खुद की लाइफ को वैल्यू दिया, जिन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत वैल्यूज ली, जिन्होंने अपने स्कूल्स में बहुत संस्कार और वैल्यूज सीखे। यदि ह्यूमन बीइंग को देखा जाए तो एक श्लोक मुझे याद आता है, मुझे पूरा याद नहीं है, शर्मा मैम उसको बीच में पूरा करेंगी। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके च भूरि भारि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यस। तो जिनके अंदर वैल्यूज नहीं है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है, जिसके अंदर शिक्षा नहीं है, जिसके अंदर गुण नहीं है, भले ही उसके पास पीएचडी की डिग्री है, वो बिना पूंछ वाले जानवर की तरह है। इस श्लोक से यदि मैं इसको ठीक समझाऊं तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है जो एजुकेशन अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार और खुद के लिए काम नहीं आ सके। हमको उस एजुकेशन की तरफ बढ़ना है कि मेरा हर बच्चा अपने आप को इस लायक बना ले कि वो अपना केयर करे, अपनी फैमिली का केयर करे, अपने पेरेंट्स का केयर करे और समाज का केयर करे, देश का केयर करे। और यही फ्यूचर लीडर्स हैं जो आगे चल के कमांड करने वाले हैं पूरे कंट्री को और वर्ल्ड को। अभी बाउंड्रीज टूट चुकी हैं,
अभी इंडिया इंडिया नहीं रह गया, अभी हम ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं। हमारा यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को आज अमेरिका में एक्सेस अवेलेबल है, हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को आज वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंचने की अपॉर्चुनिटी है। तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना हमारे बच्चों को आना चाहिए। वो तभी संभव है जब हम इनको एक मोटिवेटेड फोर्स के तौर पे डेवलप करेंगे, वैल्यूज के साथ डेवलप करेंगे। ओके, और मुझे पता है मेरे बच्चों में, जितने भी बच्चे मेरे टच में हैं पूरे हिंदुस्तान में या इस स्कूल में, सब वैल्यूज वाले बच्चे हैं, सब मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, और सबकी फैमिलीज में ये है कि हम कुछ करें ऐसा कि हमको दुनिया याद रखे। मैं चाहता हूं इन सभी बच्चों से कि आप अपने आप को ऐसा एलिवेट कर दो, जैसे किसी ने लिखा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मतलब आप अपने आप को यदि एस्टेब्लिश कर देते हैं तो भगवान भी आपसे आके पूछते हैं कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो सिचुएशन हमको क्रिएट करनी है हर बच्चे की लाइफ में, और ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से होगी। सिर्फ करना क्या है, हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को, हर टीचर को ये जिम्मेदारी लेनी है कि आज से ही मैं अपना हर मिनट, हर सेकंड अपनी लाइफ का बच्चों की ग्रोथ पे, बच्चों की वैल्यूज पे, समाज के निर्माण पे, देश के निर्माण पे मैं लगाऊंगा। और उसके बाद देखिए आपको कितना मजा आएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल से जो मुझे मिला है आप सभी लोगों से, बच्चों से, वो इतनी जबरदस्त एनर्जी मिली है कि मुझे अब लाइफ में और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। हर समय ऐसा लगता है, ये मेरी आज दूसरी मीटिंग है, हर समय ऐसा लगता है कि लेट मी गो बैक टू द चिल्ड्रन, लेट मी गो बैक टू द पेरेंट्स। इसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यदि आपने साथ नहीं दिया होता तो शायद मुझे इतना मोटिवेशन नहीं होता और इतना कुछ कर पाने की हमारी क्षमता भी नहीं डेवलप होती। आज मुझे ये बात आपके साथ कहते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चों में आज भी, यदि मैं इनको भीड़ में खड़ा कर दूं, जबकि अभी हमें इनके ऊपर बहुत काम करना है, आज भी हम इन बच्चों को स्पॉट कर सकते हैं कि ये यूसीएस कैंप के बच्चे हैं। और मुझे ये शेयर करते हुए भी आपके साथ बहुत खुशी हो रही है कि मैं जब कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शंस करता हूं तो लोग बोलते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में ही नहीं, वैल्यूज में भी, डिसिप्लिन में भी, संस्कारों में भी सबसे अच्छे हैं। अभी भारत को जानो एक प्रतियोगिता हुई है, उसमें आपके बच्चों ने पहले भिवाड़ी को टॉप किया। 400 बच्चों में से 2 टीम होती हैं, एक जूनियर वर्ग और एक सीनियर वर्ग। दोनों ही वर्गों में आपके बच्चों ने टॉप किया है। सीनियर्स में भी आप ही के बच्चे जीते हैं, जूनियर्स में भी आपके ही बच्चे जीते हैं, और ये अभी प्रांत लेवल पर आज शायद इनका कंपटीशन चल रहा होगा इस समय। और मुझे भरोसा है आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से ये बच्चे पूरे हिंदुस्तान में टॉप करके आएंगे। कारण उसका क्या है कि आप फैमिली में भी वही बात करते हैं वैल्यूज की, स्कूल में भी हम वही बात करते हैं वैल्यूज की, और मातृभूमि को जिस तरीके से ये बच्चों ने देखना शुरू किया है, देश को जिस तरीके से देखना शुरू किया है, इनसे ज्यादा भारत को जानने वाले दूसरे बच्चे मुझे दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि ये सभी बच्चे और हम सब लोग अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। हम हर हाल में कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो हमारे पारिवारिक संस्कार हैं वो निश्चित रूप से मिलें, और देखने को आ रहा है, रिजल्ट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था जब मिसेस शर्मा बात कर रही थी बच्चों से कि पेरेंट्स का सुबह शाम आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं। मैं भी कभी कभी जैसे बच्चे सामने मुझे पड़ जाते हैं, मैं जब पूछता हूं, बहुत अच्छा एनकरेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। एक आध फैमिली ऐसी है जहां मुझे अभी डेटा नहीं आया है, उनके चेहरे को देख के ही मैं फोटो में, वीडियो पे ही पहचान लूंगा कि उनके यहाँ वो नहीं हो रहा है। करना है,
इन बच्चों को वो एनकरेजमेंट देना है, वो इन बच्चों को एक डायरेक्शन देना है। बच्चा नहीं कर रहा है तो हमको करना है और करवाना है, और उसको हाईलाइट भी करना है। जो भी बच्चा अच्छा काम कर रहा है उसको निश्चित रूप से हाईलाइट करके पूरे समाज को बताया जाए कि देखो मेरा बच्चा इतना अच्छा है, मैं प्राउड करता हूं अपने बच्चे के ऊपर। और वो सिचुएशन जिस दिन हम क्रिएट कर लेंगे, हम अपने बच्चे को तो मोटिवेट कर ही रहे होंगे, अपने आसपास के और भी बहुत सारे बच्चों की लाइफ में हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है मुझे कि हम सब मिलके ऐसा कुछ करेंगे कि इन बच्चों को जिस रास्ते पे ये चल पड़े हैं उस रास्ते पे कोई कठिनाई ना आने दें, आगे चलने में इनकी हर लेवल पर हम मदद करें। तो अभी के लिए जो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो ये है कि हमें इनके बेसिक एटिकेट्स, कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना शुरू करना है। मैं किताबी ज्ञान के बहुत ज्यादा अपने आप को नजदीक नहीं पाता हूँ। किताबी ज्ञान ठीक है, उसकी जरूरत है, कॉम्पिटिशन्स देने के लिए जरूरत है, पास होने के लिए जरूरत है, मार्क्स लाने के लिए जरूरत है, मगर एक स्टेज के बाद वो जो मार्कशीट है वो एक फाइल में एक कागज के तौर पे देखी जाती है। एक स्टेज के बाद आपकी मार्कशीट रोज आपके व्यवहार में दिखाई देती है, आपके फेस पे दिखाई देती है, आपका काम करने के तरीके पर दिखाई देती है। तो क्यों ना हम ऐसी मार्कशीट क्रिएट करें जो सबको हमारे साथ हमारे टच में आते ही दिखाई देने लग जाए कि ये टॉपर है, ये 100% मार्क्स वाला बच्चा है। 100% मार्क्स वाले बच्चे को जिसमें वो वैल्यूज हैं उसको कहीं से भी अपना ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं पढ़ने में कैसा था। मुझे तो आज तक ऐसा कोई मौका नहीं याद है जब मेरी किसी ने कोई मार्कशीट्स देखी हो, मगर जब मेरे से बात करता है, आप भी आते हैं, बातचीत करते हैं, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मेरे पास से कोई भी आदमी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, खाली हाथ ना जाए, कुछ लेकर जाए। और आप जब कुछ लेकर जा रहे होते हैं तो मैं देखता हूं आप मुझे बहुत कुछ देकर जा रहे होते हैं। आपको जो मैंने दिया है उससे भी बड़ी खुशी आप मुझे देकर जा रहे होते हैं जब मैं ये देखता हूं कि आप मेरे पास से उठने के बाद जब ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं तो एक संतुष्ट मन के साथ निकल रहे हैं। यही चीज हमको अचीव करनी है पूरे साइकिल में, और मैं एक ऐसा साइकिल क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें नेगेटिविटी घुसने की जगह ना मिले। एक ऐसा पॉजिटिविटी का साइकिल हम लोग बनाएंगे जिस साइकिल को नेगेटिविटी को तोड़ने में बहुत प्रयास करना पड़े और वो टूट ना सके, उसके अंदर केवल और केवल पॉजिटिविटी ही दिखाई दे। और वो संभव है क्योंकि हम लोग उस रास्ते पर निकल लिए हैं और उसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। और हम अब हमें टेस्ट ऑफ सक्सेस भी आने लगा है, मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, टीचर्स को भी, सभी को आने लगा है। और पेरेंट्स को भी मैं देख रहा हूं कि आप संडे है, आप इस समय चूज कर सकते थे कि मैं तो रेस्ट कर रहा हूं, मैं तो अपनी पूरे हफ्ते की थकान निकाल रहा हूं, मगर उसके बावजूद भी मेरे पास 100 लोगों का जूम आईडी है और इस समय 100 लोग जुड़े हुए हैं और काफी लोग वेटिंग रूम में हैं। तो ये सक्सेस है हमारे आपस में कनेक्ट होके बच्चों के ऊपर काम करने की। अगला जो प्रोजेक्ट मैं इन बच्चों के लिए लाना चाहता हूं वो होगा, अभी से आपको साउंड कर रहा हूं ताकि आप मेंटली तैयार रहें, वो होगा ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसर्स ऑफिसर तो बन जाते हैं मगर जिस सीट पर बैठे हैं वो क्वालिटीज नहीं होती हैं उनमें। जब हम मिलने जाते हैं तो हमको लगता है यार किससे मिल लिए, मजा नहीं आया। मैं हर बच्चे में वो क्वालिटीज देखना चाहता हूं जो अभी से किसी सीनियर ऑफिसर वाली क्वालिटीज हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी में दिखाई देने लगे। और ये इम्पॉसिबल नहीं है और ये टफ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। जिस तरह के हमारे बच्चे हैं, जिस तरह से बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारी सभी चीजों पे, जिस तरह से बच्चे साथ दे रहे हैं हमारी सभी चीजों पे, और आप साथ दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, तो ये अचीवेबल है और बहुत जल्दी हम इसको अचीव करेंगे। तो नेक्स्ट 15 डेज में कम्युनिकेशन ठीक हो, बेसिक एटिकेट्स ठीक हो, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, बच्चे का काम करने का तरीका अच्छा हो, और सबसे बड़ी बात जो मैं बच्चों से मांग रहा हूं वो ये मांग रहा हूं कि डोंट लाई। When you lie to your parents, when you lie to your teachers, when you lie to me or anybody else in the community, you are lying to yourself. जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या
हम खुद भी उसी धोखे में आ जाते हैं क्या? नहीं आते। हमको तो पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमको तो पता है कि हम गलत कह रहे हैं। तो अपने ऐसा आदमी कोई वर्ल्ड में मिल नहीं सकता जो ये कह सकता हो कि मैंने खुद से कभी झूठ नहीं बोला। यदि किसी बाहर वाले से झूठ बोला है तो सबसे पहले खुद से झूठ बोला है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए जो सेंटेंस हमारे पास अंदर बन रहे हैं ब्रेन में, वो सबसे पहले हमको अंदर से अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ किसी भी तरह का झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपसे गलती भी हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि सर मुझसे गलती हो गई। कोई डांट नहीं पड़ती उनको, कोई पनिशमेंट नहीं मिलता उनको उनसे जो गलती हुई है उसको सुधार के तरीके बताए जाते हैं। मैं भी यही करता हूं, पेरेंट्स भी यही करते हैं, टीचर्स भी यही करते हैं, और हम सब लोग ये करेंगे। तो बच्चों को मैं एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आपको किसी भी स्टेज पे झूठ बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। आप बिल्कुल निडर बच्चे, मतलब मैं चाहता हूं हमारे टच में रहने वाला हर एक बच्चा हर हाल में निडर बच्चा हो, फियरलेस बच्चा हो। आप कमांडोज बने, सच के कमांडोज। और वो तभी संभव है जब आप डर के झूठ बोलना बंद कर देंगे। आप अपने ही लोगों के बीच में हैं, पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, टीचर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं, तो झूठ बोलने की जगह ही कहां है? आपसे यदि गलती भी हो गई है, कोई बात नहीं, आइए टीचर्स के पास आइए, पेरेंट्स के पास आइए, मेरे पास आइए, बताइए कि मेरे से गलती हो गई। हम उसको दूर करेंगे, हम आपको तरीके सिखाएंगे कि आगे से गलती क्यों कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला, आपको कोई डांट नहीं मिलने वाली, बल्कि उल्टा पेरेंट्स भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। और जो पेरेंट्स इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे तो हम सब दिखा सकते हैं, पेरेंट्स भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि बच्चा यदि सच बोले तो हम उसका साथ देंगे, चाहे उससे कितनी भी बड़ी गलती हो। एक बार पेरेंट्स सभी बच्चों को दिखा दें कि आप उनकी केयर करते हैं, आप उनको ये बता देना चाहते हैं कि यदि बच्चा आके सच बोलेगा तो आप बच्चे का साथ देंगे हर हाल में, किसी भी हाल में। कोई पेरेंट बच्चे के अंदर ना कमी निकालता है, ना कमी निकालने की आवश्यकता है। अभी एक प्रोजेक्ट और हम शुरू करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, माई फैमिली माई टेम्पल, माई पेरेंट्स माई गॉड्स। आई वॉज सो थ्रिल्ड टू सी दैट एक्टिविटी कि हम कितने सारे घरों में मंदिर बना सके थे, हम कितने सारे घरों में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए थे, हम कितने सारे घरों में ऐसा एनवायरनमेंट बना पाए थे कि हमारे बच्चों को सुबह शाम और दिन में कई बार अपने बड़ों के आशीर्वाद मिलना शुरू हो गए। सिंपल चीजों को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बीच में कहीं कहीं किसी किसी घर में वो बंद हो गया है। मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं, सुबह जगने के बाद रात को सोने से पहले आशीर्वाद भोजन की तरह मैंडेटरी है। देने वाले के लिए भी मैंडेटरी है और लेने वाले के लिए भी मैंडेटरी है। जब आप एक वो आशीर्वाद के सर्कल में लाइफ को जीना शुरू करते हैं तो आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी आती है। जब कर्स के एनवायरनमेंट में जीना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी भरने लगती है और आपकी पूरी एनर्जी उस नेगेटिविटी को फाइट करने में खर्च होती है। तो हम क्यों ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारी एनर्जी उस चीज पे लगे जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो मैं पेरेंट्स से वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को सुबह शाम एक बार जरूर गॉड ब्लेस यू कहें और उनको आशीर्वाद जरूर दें। उसमें बहुत बड़ी ताकत है, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है इस चीज को, और आप सब लोगों ने भी रियलाइज किया होगा। हम सब लोग ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जहां ब्लेसिंग्स की बहुत बड़ी वैल्यू रही है हम सबकी लाइफ में। तो ये बच्चे उस चीज से डिप्राइव ना हो। नए सिस्टम में, नए कल्चर में धीरे धीरे, पता नहीं क्यों हमारी एजुकेशन भी थोड़ा सा मिसगाइडेड थी, मिसडायरेक्टेड थी, कि बच्चों को ये एक जो वैल्यू एड था उसको सिखाया नहीं जाता था। हम अपने स्कूल से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम देखेंगे दूसरे स्कूल्स भी हमको फॉलो करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स एक उस तरह के सर्कल में रहना शुरू करें जहां पॉजिटिविटी के अलावा और कुछ भी ना हो। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
कल आपके व्हाट्सएप पे एक डॉक्यूमेंट ड्रॉप किया जाएगा, उसको प्लीज जरूर यूज करें, अपने लिए भी अपने बच्चे के लिए भी। हमको 15 डेज का टारगेट है कि 15 डेज में इसमें 100% सक्सेस अचीव करनी है, और उसके अगले 15 डेज में अगला प्रोजेक्ट जिसको मैं कह रहा हूं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, उस पर भी काम करना है। हर बच्चे के चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से, बातचीत करने के तरीके से, उसके शब्द बोलने के तरीके से यह समझ में आना चाहिए कि हमारे बच्चे डिफरेंट हैं, बाकियों से बेटर हैं। जैसे मैं कहता हूं, हमारे सामने हमारे कॉन्करेंट और जस्ट प्रीवियस एंड करंट प्राइम मिनिस्टर्स के एग्जाम्पल हैं। हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, ग्रेट ऑरेटर हैं। तो आज उनका वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स का नाम लिया जाता है, उनमें सबसे ऊपर उनका नाम लिया जाता है, सिंपली बिकॉज ही इज एबल टू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो मैं अपने बच्चों में जो देखना चाहता हूं, एक तो उस लेवल का कम्युनिकेशन देखना चाहता हूं जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की शैली है। दूसरी चीज, उनसे पहले वाले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी विजडम का, उनकी नॉलेज का कंपैरिजन इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड में नहीं है मनमोहन सिंह जी का। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चों के अंदर मनमोहन सिंह जी जैसी नॉलेज हो और मोदी जी जैसी डिलीवरी हो। ये दो चीज यदि मेरे बच्चों ने अचीव कर ली तो निश्चित रूप से हम लोग, मतलब शायद मेरा ऐसा सोच है कि स्काई विल बी द लिमिट फॉर आवर चिल्ड्रन फॉर द ग्रोथ। तो इस पे मैं समझता हूं हम सब लोग मिलके काम करेंगे, पेरेंट्स मेरा साथ देंगे, बच्चे साथ दे रहे हैं ऑलरेडी, और हम सब लोग मिलके इसको अगले 15 दिन में 100% सक्सेस रेट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए मुझे अपनी तरफ से आपसे इतनी ही बात कहनी थी। बाकी मैं आपको सुनना चाहता हूं कि आप में से किन किन बच्चों को, पहले मैं बच्चों को सुनूंगा, किन किन बच्चों को ऐसा लगता है, चाहे आप चैट पे लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। किन बच्चों को ऐसा लगता है कि जो आज दो बातें मैंने की हैं, एक तो बीइंग गुड कम्युनिकेटर्स, knowledgeable people, and child with officers like qualities, क्या ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपको जम रहे हैं? आप मुझे थम्स अप करके भी दिखा सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हाथ उठाया है सोम सुब्रा ने। यस बेटा। Good afternoon, sir. Good afternoon. Do you like the idea? Yes, sir. You like to do that? Yes, sir. Very good. And your mom is with you? Yes, sir. I'm sure she will help. Yes, sir. So make your mom a communicator in your house, okay? You will be successful. Yes, sir. Okay. Tanuja? Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. How are you? Sir, I am fine. I want to say that the ideas that you gave us today was really wonderful, and I will make sure that I can apply it on my life. Very good. Very good. I'm so glad that my children are getting me very right. Dev Singh? Yes, beta. Unmute yourself. Yes, sir. Sir, I am saying that if we will be skilled, then we have a high value, and if we will be able to communicate, then we will be able to share our ideas. Wonderful. Wonderful. Great. Okay, Apurva? Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Sir, I want to say that the project you have shared with us are really unique and wonderful, and I will surely make them in my life. Wonderful, wonderful. And I'm so happy your mom has been supporting me quite a lot right from the beginning. And this family, I'm really honored with all of you for your support. Okay, Pranshi? Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I'm fine, sir. How are you?
I'm good. You have Dada Dadi with you? No, sir. Nana Nani pretend. Nana Nani. Okay, very nice. Good afternoon, sir. मैं नाना नानी दोनों को नमस्कार करता हूँ. Yes, beta. Sir, I really like your both ideas and I will work on it, and it's very important part of our life also. Wonderful, wonderful. So happy for you. Tanishq, Thank you, sir. Good afternoon, sir. good afternoon, beta. How are you, sir? I am very well. सर जैसा कि अभी आपने बताया, जिसकी हम किसी चीज को करने की अगर चाहत रखते हैं तो सर कोई भी हमें रुकावट रोक नहीं सकती उस चीज को करने से. वाह, शाबाश. देखो हमारे पास कितने विद्वान बच्चे हैं. पेरेंट्स, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड. हाँ, हम कहाँ सोचते थे इस एज में इतनी डीप बातें. आई मीन, आई एम सो प्राउड, तनिष्क. वेरी वेल. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा. यशिका, Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. Sir, I like your project and I work on it. वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट. एकता, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. How are you, sir? आई एम वेरी गुड बेटा. Sir, your idea is great and I like your idea, sir. I also work on it. Wonderful, wonderful. You are already good and I'm sure you will better yourself. Ayushi? Sir, I also really like your idea and I will also work on it. Okay. So your success would be when your papa will start talking in English with me. Right? That is the minimum target. Did you get my point? Yes, sir. So entire family should learn that art of communicating with you. Okay? और पापा जी से मेरा निवेदन है कि इसको मौका दीजिएगा आपको वो कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने का, ताकि ये टीचर बन के प्राउड फील कर सके. जी सर. ओके, थैंक यू सर. भव्या? Yes, sir. Good afternoon, sir. बेटा, Sir, I like your idea and I will try to follow it. वंडरफुल, ग्रेट. शगुन? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटी. Sir, I love your idea and I will also try to work on it. वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट. तेजस? Thank you, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. I like your idea and I will also try to follow it. वंडरफुल, ग्रेट. इशिका? Good afternoon, sir. Good afternoon. You are looking beautiful, Ishika, today with so well manned hair. Okay. Sir, Great. we are in market, that's why, sir. Okay. So you are attending my session from market also. Yes, sir. I'm not able to listen your first and second idea. That's why I listen your YouTube video, ma'am. Sir, that's why I join late. Okay. Great. Great. So But that's sir, very I also follow the ideas. great. Shabash. Harsimar. Good afternoon, sir. Good afternoon, Betty. How are you, sir? I'm very good. Sir, I like the ideas which you shared and I will do efforts for that. Wonderful. Wonderful. Harshita. Yes, sir. Sir, I also like your ideas which you have shared, and sir, I will definitely follow your ideas. Wonderful. Wonderful. Great. Daksh. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Sir, I also like your idea and I will also effort to do that. Wonderful. Shreya? Shreya? Okay. Till Shreya is able to unmute, let me hear Shravya. Yes, sir. Sir, your ideas are very innovative, and I will follow them for a successful life. Great, great. I am so happy. Nishu? Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Sir, I really like your ideas, and I will put all my efforts to follow them. वंडरफुल. तो मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए सारे बच्चे कमिटमेंट कर रहे हैं, इनके लिए एक बार हौसला अफजाई के लिए हम लोग तालियां जरूर बनाएं. दिस इज समथिंग ग्रेट, इट्स यूनिक. मैंने अभी तक मैं बहुत सारे स्कूल्स के साथ जुड़ा हुआ हूं, वर्ल्ड ओवर में ट्रेवल कर चुका हूं, मैंने इतने अच्छे बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं. एंड आई एम सो प्राउड के पेरेंट्स आपने इतने अच्छे बच्चे हमको दिए हैं. और मैं
कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ूंगा कि इन बच्चों को सक्सेसफुल ना बना सकें। हर उस दरवाजे को हम खटखटाएंगे, हर उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेंगे जो हमारे बच्चे की लाइफ में सक्सेस ला सके। और सक्सेस मैं खाली मार्कशीट पे मार्क्स से नहीं देखता हूं। सक्सेस तो बच्चे के चेहरे से दिखेगी, सक्सेस तो बच्चे के खड़े होने के तरीके से दिखेगी, बात करने के तरीके से दिखेगी। ओके, तो ये मैं डेफिनेटली एंश्योर करना चाहूंगा। श्रेया इज अनेबल टू अनम्यूट। वेयर आर यू श्रेया? लेट मी ट्राई। नाउ यू अगेन ट्राई बेटा। Okay, you write down your thought, I'll read for you. Okay, beta? There is some technical issue, you are unable to unmute yourself. Okay, कुछ parents यदि कोई बोलना चाहें तो please raise your hands. आपने देखा बच्चों ने कितनी अच्छी बातें की हैं, कुछ तो आप बच्चों के लिए अच्छी बात कहिए। निशु के पापा कुछ कहना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार सर। सर बच्चे तो समझदार हैं, आपके साथ हमेशा रहते हैं, और मैं खुद इसलिए इस सेशन को ज्वाइन करता हूं कि मेरी लालच है कि आपसे कुछ सीख सकूं, और इसके लिए थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। ओके, और कोई प्रांशी के नाना जी कुछ बोलना चाहें? मैंने कभी सुना नहीं प्रांशी के नाना जी को। सर आपने जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो सब्जेक्ट लिया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपने जो मतलब ऑफिसर्स के बारे में जो सब्जेक्ट लिया है ना, उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी मतलब राय देना चाहता हूँ कि आप इस मामले में बच्चों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आपके ये बच्चे इस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये जो आपके राइट हैंड साइड पे बैठी है सुंदर सी लड़की, आप नोट कर लीजिए, आज लिख लीजिए किसी डायरी में कि ये बहुत बड़ी अफसर बनने वाली है। बहुत बढ़िया साहब, आशीर्वाद हमारा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। आप हम सबको और इन सब बच्चों को, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम सबको जरूर आशीर्वाद दें कि हम इस मिशन में सफल हों। ओके, यशिका शर्मा की मम्मी कुछ कहना चाहती हैं। हेलो सर। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सर मुझे ये पूछना था, जैसे बच्चों का क्या यूनिफॉर्म का वो चल रहा है ना, अभी चेंज होगा। जी हेलो जी। हाँ सर, वो उनका फिर क्या करें, जैसे विंटर का ब्लेजर वगैरह वो लाना है कि अभी चेंज होगा या क्या होगा सर? अभी बच्चों को कुछ भी पहन के भेजें, कोई जल्दी नहीं है। अभी सिर्फ मेरे लिए बच्चों की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म वगैरह से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, जिसमें बच्चा वार्म फील करे, अच्छा कपड़ा पहन के आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म आराम से खरीदेंगे। उसके कई कारण हैं, एक तो चेंज कर रहे हैं, एक दूसरा कुछ पेरेंट्स के पास फंड्स की भी इश्यूज थे, बहुत सारी चीजें थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूनिफॉर्म का एक रोल डिसिप्लिन में है, मगर पढ़ाई में कोई नहीं है। तो हमें डिसिप्लिन पे ज्यादा काम करने की, इतने अच्छे बच्चे हैं, आवश्यकता ही नहीं है। आपके बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। अपूर्वा। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर बच्चों को तो आप हमेशा ही अच्छा कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आगे आप क्या बताने वाले हैं, अब क्या आगे नया होने वाला है जिससे कुछ अच्छा ये लोग सीख पाए। और सर दिखाई देता है व्यवहार में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चल रहा है और हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं। चेंज जो हो रहा है बच्चों के अंदर, वो दिन प्रतिदिन पता चल रहा है, दिखता जा रहा है, ये सच में वर्क कर रहा है। थैंक यू सर। आपके घर में तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि एक मेरी बहुत विद्वान दोस्त है आपके घर में। मैं उसके हर जगह एग्जाम्पल्स देता हूँ, है ना, भगवान करे उसको नजर ना लगे मेरी। मैं उसके बहुत जगह लोगों को एग्जाम्पल्स देता हूँ कि देखो मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं कि इस युग में भी वो रामायण महाभारत और क्या कुछ मेरे बच्चों को पता है। दिस इज समथिंग ग्रेट, यू नो, आई एम सो हैप्पी। वो सर उन लोगों का मतलब, मेरी मम्मी गीता पढ़ती थी शुरू से, और मेरी जो सासू माँ थी वो रामायण पढ़ती थी, तो वो दोनों का हम लोगों का चल रहा है साथ में, तो वो दोनों चीज उसके अंदर आ गई। वो गीता भी पढ़ती है, रामायण भी पढ़ती है। यही फैमिली वैल्यूज हैं और यही बच्चों को आगे बढ़ाती हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे उन लोगों के फॉलोअर्स बने जो अपने पैसे कमाने के लिए अगली जनरेशंस को खराब कर रहे हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे अपने मम्मी पापा को अपना रोल मॉडल समझें,
अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को अपना रोल मॉडल समझें, अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल को अपना रोल मॉडल समझें, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ही सारी चीजें अवेलेबल हैं, इनको कहीं किसी मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, अब ये ना एक पॉइंट था, अभी तक हम लोग बच्चों को सिखा रहे थे, लाइक अंजलि, अपूर्वा तो छोटी है अभी, अंजलि को मैंने सिखाया है 7th 8th तक, पर अब टाइम वो आ गया कि अब वो मुझे सिखाने लग गए, जैसे कि भजन गाते या कुछ भी गाते, अब हमेशा टीवी में या कहीं पार्टी में कोई ऐसा सॉन्ग बज गया और मान लिया मैं गुनगुनाने लग जाऊं घर में, तो मुझे मम्मी क्या गा रही हो आप, मतलब आपका टेस्ट खराब होता जा रहा है। ये हो गया है। ग्रेट ग्रेट। तो ये हम देखिए, वी आर इनटू सोसाइटी मेकिंग, दिस इज समथिंग ग्रेट, चिल्ड्रन आर कमिंग अप। ओके, स्पर्श की मम्मी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जब से मैंने अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिशन करवाया है, तो मेरे बच्चे जिनसे भी मिलते हैं वो डेली मुझे ये कहते हैं कि मैम आपके बच्चों में अलग एक डिसिप्लिन है, एक बोलने का तरीका है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। तो वो मुझे पूछते हैं कि मैम आपने किस स्कूल में एडमिशन करवाया है, और सर मेरे बच्चों को देखकर हमारी ही सोसाइटी से 2 से 3 बच्चों ने आप ही के स्कूल में एडमिशन करवाया। जो डिसिप्लिन आपके स्कूल में सिखाया है सर, वो कहीं भी नहीं सीखा। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं इसके लिए स्कूल को तो नहीं, मगर आप लोगों को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहता हूं। पहली बात, थैंक यू सो मच। आपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल चूज किया। दूसरी बात, जो काम बच्चों के ऊपर होना है उसमें आप साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारी साइड से पूरा सपोर्ट रहेगा। यदि मैं दिन को दिन कहूं और आप दिन को रात कह दें तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यदि हम सब लोग दिन को दिन कह रहे हैं तो बच्चे उसको समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मुझे आपका साथ मिला है, मैं सभी पेरेंट्स को अपना दोस्त मानता हूं, मैं पेरेंट्स के नजरिए से देखता ही नहीं। तो जो साथ आप लोगों का हमें मिला है वो इन बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आप देखेंगे। मैं वो लेवल अचीव करना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में स्कूल वाले यहाँ आए और देखें कि आपने इन बच्चों को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। उसके लिए मैंने एक ट्रांसफॉर्म विद डॉक्टर कौशिक करके यूट्यूब पे सीरीज शुरू की है। तो मैं फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा, आज का डिस्कशन भी और आगे के डिस्कशंस भी, आप सपोज कई लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं सेशंस को, आपको यूट्यूब पे मिलेंगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लिंक भेजा जा चुका है, तो वो आपके इनबॉक्स डिलीवर हो जाया करेगा। जब भी मौका मिले उस समय उसको देख लिया, और उसको बैठ के बच्चों के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड आई एम सो हैप्पी कि हम सब लोग मिलजुल के बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये काम हम जारी रखेंगे, इसको कभी रुकने नहीं देंगे। 1 घंटा निकालना 10, 12, 15 दिन में, मैं समझता हूँ ये एक इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसमें हमें कभी लॉस नहीं होने वाला। इससे हम कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे, और मैं हर मीटिंग में कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी नई चीज लेके आऊं जिससे हमारे बच्चों को फायदा हो सके। उसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पूरा डिस्कशन YouTube पे अवेलेबल है, उसको दोबारा देखें। जो नहीं देख पाए हैं वो बाद में देख लें, जिनका आधा छूट गया था वो भी देख लें। उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने कमेंट्स जरूर लिखें, ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे और किस डायरेक्शन में बच्चे के लिए काम करने की आवश्यकता है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।